is pointers and polymorphism in C++. So today we will see our last topic in polymorphism concept, that is runtime polymorphism in C++. So in the previous video we have seen about compile time polymorphism. Polymorphism is of two types, that is compile time and runtime. So in the previous video we have seen what is compile time polymorphism, what is function overloading with example, and operating overloading with example. So compile time polymorphism is further subdivided into two parts, that is function overloading and operator overloading. So we have seen in detail about this. So coming to today's topic, that is runtime polymorphism. In this video we will study about what is runtime polymorphism. Runtime polymorphism is also called as dynamic polymorphism or late binding, and how polymorphism is implemented, that is with the help of virtual function and different rules of implementing virtual functions. We will also see what is a pure virtual function. POs mapped are PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So what is virtual function? Basically we have divided polymorphism into two types, that is compile time and runtime polymorphism. Compile time polymorphism is implemented in C++ with the help of function overloading and operator overloading, whereas runtime polymorphism is implemented in C++ with the help of virtual functions. Okay, so basically what is runtime polymorphism? When the value is binded to any function or to the program during the execution time, not during the compile time. Execution time is also called as runtime. So that type of polymorphism is called as runtime polymorphism. So we will implement this runtime polymorphism with the help of virtual functions. So what is virtual function? A virtual function is a member function of a class that is declared within a base class and redefined in derived class. सो व्हाट इज़ अ वर्चुअल फंक्शन? वर्चुअल फंक्शन हमारा सिंपल मेंबर फंक्शन ही है जिसको हम डिफाइन करेंगे बेस क्लास में और फिर उसको यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस इन डिराइव्ड क्लास. तो इसका दो बार डेफिनेशन लिखेंगे हम, पहले बार बेस क्लास में और सेकंड टाइम इन डिराइव्ड क्लास. So what the definition says, a virtual function is a member function of a class that is declared within a base class, यानी base class में भी define करेंगे and redefined in a derived class. यानी function declaration किस में रहेगा? सिर्फ इन बेस क्लास फंक्शन डिक्लेयर करके रख देंगे वर्चुअल वॉइड शो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन, इसको बोलेंगे हम डिक्लेरेशन. ये किस में लिखेंगे? बेस क्लास में. बट उसका जो डेफिनेशन है कि शो फंक्शन ने क्या करने को होना, वो किस में लिखेंगे? इन डिराइव्ड क्लास. जैसे इसमें लिखे हमने डिराइव्ड क्लास में वॉइड शो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रेस ओपन सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी स्टेटमेंट हमको देने का है, और फंक्शन को क्लोज किए, तो इसको बोलेंगे डेफिनेशन. करली ब्रेस के अंदर जो लिखते हैं उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, डेफिनेशन. और सिर्फ फंक्शन नेम लिख के छोड़ दिए सेमीकोलन देके, तो उसको बोलेंगे हम डिक्लेरेशन. तो डिक्लेरेशन इज डन इन बेस क्लास एंड इट्स डेफिनेशन इज डन इन डिराइव्ड क्लास. तो सिंटेक्स, किसी भी मेंबर फंक्शन को लिखने के लिए क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले रिटर्न टाइप और उसका फंक्शन नेम. बस उसके आगे हमको प्रीसीड क्या करने का है? विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड दैट इज़ वर्चुअल. वर्चुअल कीवर्ड जैसे ही लिखेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? वर्चुअल फंक्शन.
समझो वर्चुअल वाइड शो लिखे, तो फंक्शन का नाम है शो फंक्शन और उसका रिटर्न टाइप इज़ वाइड और कीवर्ड क्या है वर्चुअल, यानी वो वर्चुअल फंक्शन है। रूल्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन ऑफ राइटिंग अ वर्चुअल फंक्शन। तो फर्स्ट है वर्चुअल फंक्शंस आर क्रिएटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग यानी ही हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वर्चुअल फंक्शन कब यूज़ करेंगे? फॉर इम्प्लीमेंटिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। सेकंड, द वर्चुअल फंक्शंस मस्ट बी मेंबर्स ऑफ सम क्लास। ये तो रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है कि वर्चुअल फंक्शन किसी न किसी क्लास में हमको लिखना ही पड़ेगा। जनरली हम इसको किस में लिखते हैं? इन बेस क्लास। दे कैनॉट बी स्टैटिक मेंबर्स। अभी फंक्शन वर्चुअल फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं? डिक्लेरेशन एक क्लास में देने वाले हैं और उसका डेफिनेशन दूसरे क्लास में या तो डिराइव्ड क्लास में। तो इसको अगर हमने स्टैटिक बना दिए ये वर्चुअल फंक्शन को, तो उसका डेफिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। डेफिनेशन भले ही लिखे बट जो बेस क्लास में उसको हमने वैल्यू असाइन किए है वही रहने वाला, इसलिए दे कैन नॉट बी स्टैटिक मेंबर्स। उसके बाद दे आर एक्सेस्ड बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स। वर्चुअल फंक्शंस को अगर एक्सेस करने का है तो उसमें हमको पॉइंटर्स यूज़ करना पड़ेगा, बट किसका पॉइंटर्स? ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस कराएंगे। A virtual function can be a friend of another class. Virtual function क्या रह सकता है? A friend function of some another class. So coming to pure virtual functions. अभी प्योर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होने का। प्योर वर्चुअल फंक्शन में सिर्फ दो चीज़ें हमको याद रखने का है। वर्चुअल फंक्शन है यानी वर्चुअल कीवर्ड रहेगा फंक्शन के साथ और इक्वल्स टू क्या रहेगा? हमेशा ज़ीरो। तो जो भी वर्चुअल के फंक्शन के सामने इक्वल्स टू ज़ीरो है यानी वो फंक्शन अगर ज़ीरो से एंड हो रहा तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्योर वर्चुअल फंक्शन। वही हमने लिखे है, अ वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द बेस क्लास एंड रीडिफाइंड इन द डिराइव्ड क्लास। वर्चुअल फंक्शन हमेशा कैसे रहेगा? बेस क्लास में उसको डिक्लेयर करेंगे और उसको रीडिफाइन करेंगे इन द डिराइव्ड क्लास। द बेस क्लास हैज़ बीन डिफाइंड एम्प्टी। बेस क्लास अभी प्योर वर्चुअल फंक्शन में बेस क्लास में जो फंक्शन लिखने वाले हैं अपन दैट इज वर्चुअल फंक्शन, तो वो क्या रहेगा? एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी का मीनिंग क्या रहेगा? इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश कैसे करने का है वर्चुअल फंक्शन में और प्योर वर्चुअल फंक्शन में? प्योर वर्चुअल फंक्शन में इक्वल्स टू ज़ीरो अगर है तो वो है प्योर वर्चुअल फंक्शन। सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर कर दिया इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? वर्चुअल फंक्शन। तो नाउ लेट अस सी द प्रोग्राम फॉर वर्चुअल फंक्शन। तो एक बेस नाम से क्लास बना है, इसमें फंक्शन बना है। अभी वाइड प्रिंट नाम का फंक्शन है, उसके सामने हमने कौन सा कीवर्ड अटैच किए हैं? वर्चुअल। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया? वर्चुअल फंक्शन। तो ये वर्चुअल फंक्शन क्या प्रिंट कर रहा है? सी आउट बेस फंक्शन। एंड एल यानी एंड लाइन, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा। फंक्शन क्लोज किए, क्लास क्लोज किए। सिंपल है, एक फंक्शन लिए जिसको बनाया हमने वर्चुअल। ठीक है, प्रिंट नाम से फंक्शन है। अभी डिराइव्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास है उसको इनहेरिट किए हमने बेस क्लास से, तो पब्लिक बेस। अभी इसमें भी फंक्शन है वाइड प्रिंट नाम से। अभी ये वर्चुअल है क्या? नहीं है, पर वो जो बेस क्लास में जो वर्चुअल फंक्शन है उसका डेफिनेशन हमको यहाँ पे लिखने का। तो वहाँ पे क्या लिखे थे? सी आउट में बेस फंक्शन, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखे? डिराइव्ड फंक्शन। फंक्शन क्लोज किए और क्लास को क्लोज किए। फंक्शन नेम इन बोथ आर सेम क्योंकि वर्चुअल फंक्शन को हम यूज़ कर रहे। वर्चुअल फंक्शन डिफाइन करेंगे इन बेस क्लास। अभी इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन एक भी नहीं है क्योंकि बेस क्लास में वर्चुअल वाइड प्रिंट इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है। अगर इक्वल्स टू ज़ीरो रहता और ये वाला पार्ट कुछ भी नहीं रहता, दिस पार्ट ये कुछ भी नहीं है, इक्वल्स टू ज़ीरो रहता और सेमीकोलन रहता, तो इस कंडीशन में इसको बोले रहते अपन ने प्योर वर्चुअल फंक्शन। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपल ये वर्चुअल फंक्शन है। इसका डेफिनेशन या तो इसका
डेफिनेशन कुछ अलग है, यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा बेस फंक्शन, बट डिराइव्ड क्लास में क्या प्रिंट कर रहा, जो भी सी आउट में दिया है वो चीज़। तो कंफ्यूज नहीं होने का है प्योर वर्चुअल फंक्शन और सिंपल वर्चुअल फंक्शन में। डिफरेंस याद रखने का है, इक्वल्स टू ज़ीरो रहा उसका मीनिंग है कि वो प्योर वर्चुअल नहीं है, उसका मीनिंग वो सिंपल वर्चुअल फंक्शन है। तो मेन फंक्शन बनाए, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाए, ये डिराइव्ड क्लास जो भी है इसका ऑब्जेक्ट बनाए डिराइव्ड वन। ठीक है, अभी बेस वन और पॉइंटर है, पॉइंटर बेस वन, बेस का ऑब्जेक्ट बना, ये बेस हमारा क्लास है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, बट ऑब्जेक्ट नेम क्या है, पॉइंटर है। हमने पढ़े थे रूल्स में कि बेस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो किसको करेगा, डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट। तो स्टार बेस वन या तो स्टार बी, कोई ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते, स्टार बी इक्वल्स टू एंड डिराइव्ड, एंड डिराइव्ड यानी किसको, किसके पास जा रहा, इसके पास, बेस वन प्रिंट। तो बेस वन प्रिंट से क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्रिंट, ये रीडायरेक्शन ऑपरेटर है, दिस इज रीडायरेक्शन ऑपरेटर। पॉइंटर्स में हम इसको यूज़ करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो रीडायरेक्शन क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन के पास जाएगा। अभी प्रिंट किसके पास है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, बेस क्लास के पास, प्रिंट करेगा बेस फंक्शन। उसके बाद प्रिंट और कहाँ पे मिलेगा उसको, डिराइव्ड फंक्शन में, तो डिराइव्ड फंक्शन प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, बेस फंक्शन एंड डिराइव्ड फंक्शन। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन हैज़ देयर डेफिनेशन इन द बेस क्लास। लास्ट प्रोग्राम में देखो हमने सी आउट दिए थे बेस फंक्शन, प्योर हैज़ नो डेफिनेशन इन द बेस क्लास। डिक्लेरेशन, फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट, वर्चुअल फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, डिराइव्ड क्लास में ऑल डिराइव्ड क्लास मे और मे नॉट ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। डिराइव कर भी सकता है यानी ओवरराइड कर सकता है या तो नहीं, बट ऑल डिराइव्ड क्लासेस मस्ट ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास। तो ये माइनर डिफरेंसेस है, याद हमको ये रखने का। इक्वल्स टू ज़ीरो वर्चुअल कीवर्ड यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल और सिर्फ फंक्शन नेम, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल फंक्शन। So important imageability questions: define pure virtual function, explain pure virtual function with example, very important question है, and explain with suitable example virtual function in C++। अभी यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होगा, हम प्रोग्राम लिखेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन का, हमको पूछा क्या है, वर्चुअल फंक्शन, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का है, बार बार बताया है कि फंक्शन के सामने इक्वल्स टू ज़ीरो रहा तभी जाके वो होता प्योर वर्चुअल फंक्शन, नहीं दिए तो उसका मीनिंग वो सिंपल वर्चुअल फंक्शन। व्हाट वी हैव लर्न टुडे, व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, virtual function and implementation of rules for virtual functions and pure virtual functions. So thanks for watching the video lecture. In the next lecture we will continue to our next topic, that is pointers in C++. Very important part. So thank you.